ان دنوں میں جب ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، پس اے بھائیوں اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکولاؤس کو جو نوموری یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھ گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ آمین۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا کہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ شکریہ تشریف رکھیں۔ چائنا میں جو خواتین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی تعداد کم ہے۔ ایک یوٹیوب کلپ کے مطابق میں سن رہا تھا، آدھی جو خواتین ہیں وہ زیادہ ہیں مردوں سے، مطلب 50 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں وہاں 100۔ اس کے پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہا تھا چائنی آتے ہی شادی کا آگے لے جاتے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ وہاں خواتین کم ہیں، اور ان خواتین کی کمی پوری کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا مختلف ممالک میں، اور اس وجہ سے وہ آتے اور ادھر سے جو سستے ممالک ہیں، غریب ہے، وہاں آ کر وہاں آ کر پیسے لگاتے اور شادی کر کے چلے جاتے۔ پیسے لگا کے وہ شادی کرتے کیونکہ وہاں شادی بڑی مہنگی، وہاں لڑکے کو لڑکی والوں کو بڑا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ ان کی کرنسی کے مطابق 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ ادھر کے اگر سامنے تھوڑے پیسے بنتے کہ وہ ادھر آتے تاکہ وہ سستی شادی کر سکے، اور کئی وہاں جو غریب لوگ ہیں وہ شادی کے بغیر ہی رہ رہے، اس لیے ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ ہمارے چرچ میں مرد زیادہ ہوتے ہیں کہ خواتین ہی ہیں؟ ہمارے جو تناسب ہے مرد بھی اتنے ہی ہیں، خواتین بھی اتنی، لیکن چرچ میں مرد حضرات بہت کم ہوتے کیونکہ وہ دل سے تیار نہیں ہوتے، ان کی سوچ خدا ان کے لیے اتنی کہہ سکتے ہیں مناسب نہیں ہوتی، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ دنیا دار لوگ اپنے آپ کو بڑا پریپیئر کرتے ہیں۔ اکثر ہم تقریباً سارے ٹی وی دیکھتے ہیں جو چینل ہوتی ہیں اور ان کو تیار کروایا جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیوں بنایا جاتا ہے؟ باقی اچھی نظر ہے، ہاں جی، لوگوں کو اچھا لگے اور اس کام کا اس بزنس کی ترقی، اس اتنے پیسے ان پر لگائے جاتے ہیں، اتنی تیاری ان کی جاتی ہے تاکہ وہ کام بڑھے، ان کا بزنس بڑھے، ان کا جو بزنس ہے وہ ترقی کرے، دوسروں سے بہتر ہو، اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے اور کروائی جاتی ہے۔ ہم خدا کے پاس کیسے آتے ہیں؟
हम किसके पास आते हैं? खुदा के पास। कोई शख्स खिदमत में है वो भी बगैर तैयारी के आएगा, कोई शख्स लेन है वो भी बगैर तैयारी के आएगा, कोई शख्स अपने आप को खिदमत के पेश करना चाहता है वो भी बगैर तैयारी के आएगा, कोई शख्स पहले से खिदमत में है वो भी बगैर तैयारी के आएगा। अगर हम अपना एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तो 90 जो लोग हैं खिदमत में हैं या लेन है कलीसिया वो भी बगैर तैयारी के। दुनियादार कितने लोग करते हैं? बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं। हमने अपने खुदा करना होता है, अपने खुदा के सामने जाना होता है। ईमानदार शख्स को किस कदर तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए आज हम देखेंगे कैसे तैयारी करके खुदाई कलीसिया में लोग खिदमत में बुलाए जाते, खिदमत के लिए तैयार होते, खिदमत के लिए उनको चुना जाता, खिदमत के लिए उनको मुकर्रर किया जाता। सोए हुए लोगों को, सुस्त लोगों को इब्तिदाई कलीसिया में कभी भी खिदमत के लिए नहीं चुना जाता। बिली ग्राम, मुबश्शिर बिली ग्राम एक बहुत बड़ी खिदमत करके इस जहां पानी से खुदा के पास चले गए हैं। किसी खातन ने बताया कि वो उनके पास गए अमेरिका में। वो कहते हैं हम एक होटल में थे, तो जब जूते उतारते, जब हम सुबह उठते तो हमारे जूते पॉलिश होते। जब भी उठते सुबह हर रोज तो जूते हमारे क्या होते? पॉलिश, साफ सुथरे होते। वो खातन मौजूद है, लेकर कैसा साफ लाहौर के। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा ये कौन शख्स है जो हमारे सोते हुए भी इतनी खिदमत कर जाता है। तो उन्होंने कहा इसको हम देखेंगे कौन शख्स आता है। उन्होंने ध्यान रखा कि जब वो आएगा तो हम जागते हुए इसको देखेंगे, पकड़ेंगे। जब अगले दिन वो शख्स आया जल्दी जल्दी उनके उठने से पहले, वो पहले तैयार थे, देखिए कौन शख्स है। तो जब वो जूते पकड़ने लगा तो उन्होंने उसका बाजू पकड़ लिया, और जब देखा कौन शख्स है तो वो शख्स बिली ग्राम। कौन था? खातम जिसने इनको बुलाया था, जो सारे प्रोग्राम को अरेंज कर रहा था, और वो सीनियर था। और वो खातम था, कहते ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं खातमों की खिदमत करता। कितना बड़ा खातम था? 99 साल का हो के वो इस जहां पानी से गया। और ऐसे खातम की मिसाल देखे खुदा ने फिर उसको कितनी बुलंदियों पर लेके वो शख्स उस खातम को किया है। हम कितने शौक से खिदमत करते हैं। पर्सनली हम जानते हैं, जरूर भी है, तेरे रूह से खुदाया, तेरे रूह से मैं फलाना सके किधर से। आज हम देखेंगे कलीसिया खिदमत में मामूनीन और कलीसियाई फलाहत। सरसरी ज्यादा लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सरसरी देखेंगे। और एक हवाला हमने देखा है, लिखा है, इन दिनों इब्तिदाई कलीसिया की शक्ल है, एक इब्तिदाई कलीसिया की तस्वीर है, कैसे वो लोगों को खिदमत के लिए बुलाते। लिखा उन दिनों में शिकायत बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माइल यहूदी बनाने की शिकायत करने लगे। जो नए नए मसीह हुए थे उन्होंने कहा, अच्छा हमारी फिक्र नहीं की जाती, हमसे पूछा नहीं जाता, हमारा ख्याल नहीं किया जाता। तो जो रसूल थे उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा 7 ऐसे लोगों को चुना जाए। कैसे लोगों को चुना जाए? जो नेक नाम हो, नंबर 2 रूह और ऐसे लोगों को क्या किया जाए, ऐसे काम के लिए मुकर्रर किया जाए। ये टीकन की खिदमत है जो कलीसिया में की जाती, इंतजामी खिदमत के लिए। कैसे लोगों को चुनने के? नेक नाम हो, उनका जो काम है, उनकी जो शख्सियत है वो दूसरे लोगों के सामने बड़ी मुस्बत हो, बड़ी पॉजिटिव हो। कोई शख्स इतनी जल्दी शक ना करता, बल्कि अच्छी शख्सियत के अच्छे मालिक हों, रूह से भरे हुए। नंबर 3 दनाई से भरे हुए। बेवकूफ शख्सों को खुदा नहीं चुनता। लिखे करंती खात में उसने
लिया, ऐसे लोगों की मिसाल दी है जो अपने आप को बड़े ही आला पाए के हिम्मत वाले समझते थे, बड़े अपने आप को समझते कि हमारे जैसा कोई नहीं। उन लोगों से होते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल उनको तरबियत कर रहा है कि खुदा ने बहुत सारे बड़े बड़े हिम्मत वाले लोगों को नहीं चुना और छोटे लोगों को खुदा ने चुनकर उनको खड़ा किया है इतने बड़े काम के लिए। इतनी बड़ी आनर दी है खुदा ने, इतनी बड़ी इज्जत दी। किसी शख्स ने एक सच्चा वाकया सुनाया। किसी जगह बैठे हुए थे, विलियम जॉर्ज बुश अमेरिका का बहुत बड़ा सदर गुजरा है और वहाँ एक खादर था, उस कबीला का या बड़े उस लेवल तक जो खिदमत करने वाला था। उसको हो सकता है प्रॉब्लम हो, मसला हो, उसने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तो विलियम जॉर्ज बुश ने साले के बिना को बुलाया, उस खादम को बुलाया, क्या तकलीफ है आपको, क्या प्रॉब्लम है, हमें बताएं, आपका मसला हल करते हैं। तो इस्तीफा क्यों दे रहा है? तो जब वो इकट्ठे हुए तो विलियम जॉर्ज बुश ने उसको एक बात कही। उसने कहा 237 ममालिक है दुनिया में और सारे मुल्कों के बादशाह मेरे पास आते हैं, मुझे क्या करते हैं? सलाम करते हैं। सारे मेरे सामने झुकते हैं, सलाम करते हैं। तो एक बात शख्स है कादम से मुखातब होते कहा जिसको मैं खड़ा हो रखता, तेरी कितनी आनर है, इतनी इज्जत है। और उस खादम ने इस्तीफा वापस लिया। खुदा के लिए कोई शख्स जब खड़ा होता है, दुनिया में उसकी इज्जत हो ना हो, दुनिया उसको पसंद करे ना करे, दुनिया उसकी इज्जत करे ना करे, खुदा की निगाह में उसका बहुत बड़ा मुकाम, कैसी भी खिदमत करे। इसलिए मुकाम क्यों है? खुदा ने उसके अंदर ऐसी खूबियां रखी हुई हैं। नेक शख्स को उन्होंने चुना, लोगों को रूस से मामूर, लोगों को चुना दनाइश से भरे हुए लोगों को चुना और फिर उनको मुकर्रर किया। और लिखा है, लेकिन हम तो दुआ कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। जो जो किसी की खिदमत है अगर उसमें वो वफादार है, वो शख्स ने काम करी। अगर वो दूसरे की खिदमत देकर खिदमत करने की कोशिश करेगा, वो शख्स नाकाम हो जाए। हो सकता है खिदमत चलती है लेकिन नाकाम तरीन शख्स बन जाएगा वो खिदमत के दौरान भी। इस जो कुछ उसकी खिदमत है, जो कुछ उसकी खिदमत खुदा ने उसको दी है, उसको जब करेगा यकीनन वो शख्स बाबरकत होगा। बुलाया उसको किसने है? खुदा ने। और लिखा ये बात सारी जमात को क्या आई है? पसंद आई है। सब ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्तिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह से भरा हुआ, ईमान से भरा हुआ, रूह से भरा, कोई पादरी उन्होंने चुना, मुबश्शिर ने बनाया, रसूल ने, उस्ताद ने, एक इंतजामी खिदमत वाले करने वाले शख्स की जिंदगी ऐसी और फजल और ऐसी खालस और ऐसी खुदा की पसंदीदा जिंदगी थी उसको, इस काम के लिए उसने शख्स उस शख्स को चुना गया। फिर दूसरे के नाम फिलिपुस है, फिर तीसरे का नाम पुरक्रुस है और फिर चौथे का नाम निकानूर, तैमून और परनमास को, निकलाउस को जो 9 मरीज यहूदी इन ताकीद से नई तौबा की और नया नया मसीह बना और कैसे उनको महसूस किया, कैसे उनको अलग किया। लिखा है उन्हें रसूलों के आगे क्या किया? खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उस पर क्या रखे? हाथ। ये है खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने वाले शख्स का तरीका। ये कह लीजिए ये चर्च कमेटी थी, चर्च इंतजामी कमेटी, जिसको अल्लाह करने के लिए, चुनने के लिए, महसूस करने के लिए उन्होंने क्या म्यार, क्या क्राइटेरिया रखा कि वो दनाई से भरे हुए हों, रूह से माबूद हों, नेक नाम हो, ईमान में बड़े
मजबूत हों। बाकी 5 की खिदमत हमें नजर नहीं आती, लेकिन 2 लोगों की खिदमत जो इंतजामी तौर पर करने वाले थे, आपको बाइबल मुकद्दस में दूसरे रसूलों से कहीं पढ़कर नजर आती है। कौन थी इंतजामी काम करने वाले? फिलिप्पस के बारे में लिखा है, उसको पाक रूह उड़ा कर ले जाता। पाक रूह क्या करता उसको? इतना खाली शख्स, इस कदर रुल्कुस से भरा हुआ शख्स, पाक उसको उड़ा कर उसको पैदल भी नहीं जाना पड़ता, उसको बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसको किसी सवारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां भी जाना होता खुदा की मर्जी के मुताबिक पाक रूह उसको उड़ाकर उस जगह पर ले जाता। कितनी आनंद है! ये छोटा काम है, कह सकते हैं एक बर्तन धोने वाला शख्स जिसको मुकर्रर किया गया और उसको खुदा ने इस कदर क्या किया, इस्तेमाल। हालेलुया। इसलिए खिदमत जो है हर एक शख्स के पास, हर एक बहन के पास, हर एक भाई के पास मौजूद है, अगर वो अपनी अपनी खिदमत पहचाने। सबके पास खिदमत है बहनों के? नहीं है कि नहीं? किस किस के पास है? थोड़े हाथ चुके हैं भाइयों, है सबके पास के नहीं? लेकिन जब अपनी अपनी खिदमत पहचाने, एक और उसके नाम शख्स हमें मिलता है इसी ग्रुप में, इसी कमेटी में, और उसके बारे में लिखा, जब वो कलाम सुना रहा था तो लोगों ने अपने कान बंद कर लिए कि हम ये बात नहीं सुनना चाहते। लिखा है वो रूह उससे भरा हुआ जब बोलता तो लोगों ने अपने कान बंद कर कहा, इसको संसार का तो ये बहुत ज्यादा बोल। जब उसको संसार किया जा रहा था, लिखा है उसने आसमान की तरफ आंखें उठाई और आसमान को खुला और यीशु मसीह को बाप की दाहिने तरफ खड़ा हुआ पाया, देखा, लेकिन उसकी रूह अपनी कैसी थी? उसने कहा, ऐ खुदा, इनका गुनाह इनके जुमे ना लगा, पत्थरों का। फिर हम जब देखते हैं इमाम की किताब उसका 13वां बाब, और वहाँ जब लोगों को खिदमत के लिए चुना गया तो उनसे कैसा सलूक किया गया। लिखा है अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमा जो काला कहलाता है, लूकियुस कुरेनी और मनाही जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला हुआ था, और सऊल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रुल्कुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सऊल को उस काम के वास्ते महसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उन्हें क्या किया है, बुलाया। क्या किया है? बुलाया। बहनों सुन रहे हैं क्या लिखा और पढ़ा मैंने? खुदा ने कहा इनको उस काम के लिए महसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। क्या किया है? बुलाया। सारे मिलके कहें, क्या किया है? बुलाया है। आवाज बड़ी कर। क्या किया है? बुलाया है। बुलाया। तब उन्होंने फिर क्या किया? तब उन्होंने रोजा रख कर दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? रुखसत किया, महसूस किया खास काम के। पुराने अपना में जब देखते, जब काहिन को मुकर्रर किया जाता बादशाह, तो मुकर्रर को खास तरीके से उस काम के लिए मुकर्रर करके इनको डेडिकेट किया जाता। वैसे सोए हुए शख्स को उठाकर किसी काम के लिए रख दिया जाता। खुदा की खिदमत जो भी है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू, इसे आम ना समझे आए चाहे दुआ करने चलेगी, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैंने पूछा सबके पास खिदमत है कि नहीं। एक हवाला हम देखें, खिदमत सबके पास है। कोई अपनी खिदमत पहचाने, नाम पहचाने, या कोई शख्स जिस तरफ हो, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन खिदमत हर एक शख्स के पास मौजूद है। रोमियो का दूसरा बारहवां
इसको हम शार्ट पढ़ेंगे ताकि हम इसको आगे लेकर जाएं। सबको मिल गया? मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली, तो मैं से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक तक ईमान तकसीम किया है, इक़दार के साथ क्या करे? इक़दार के साथ अपने आप को वैसे समझे कि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत सारे अज़ा होते हैं, तमाम अज़ा का काम यकसान नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं, हम कितने हैं? कितने हैं? बहुत से। बोलो तो सही, हम कितने हैं? बहुत से हैं। मसीह में शामिल होकर एक बदन है, आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं, जिनके तौफीक के माफी हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं। किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा पौलुस रसूल, और इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक क्या करे? नबूवत करे। जिसको खिदमत मिली वो खिदमत में कहाँ लगा रहे? वो खिदमत में लगा रहे। सारे मिलके बोलेंगे, जिसको खिदमत मिली, जिसको खिदमत मिली, आवाज नहीं आती, ये थे है वो कहीं सारे, जिसको खिदमत मिली खिदमत में लगा, वो खिदमत में लगा रहे। और जिसको अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में क्या रहे? मशगूल रहे। अगर नासिह तो नसीहत में, खैर बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ क्या करे? रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से क्या करो? एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूप से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, कोशिश में सुस्ती ना करो। कौन कौन सुस्ती करता है कोशिश में? सारे ही। चल शाम वास्ते सुस्ती कौन करता है? संडे में कोशिश करके हम इबादत में आ सकते हैं, कोशिश करके हम दुआ में बैठ सकते हैं, कोशिश करके हम खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर सुस्ती करेंगे फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। और फिर लिखा है खुदा रूहानी जोश से भरे रहो। क्या लिखा है? रूहानी जोश से भरे रहो। कितना रूहानी जोश साडे विच? हालेलुया के तामी जोश नहीं आंदा जे। ताड़ियां मारिए फिर भी तालियां कहिए, तामी जोश नहीं आंदा। पौलुस कहता रूहानी जोश से क्या रहो? भरे रहो। तालिब जाके कितना रूहानी जोश? तालिब जाके पूरा दस हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है जोश। तो जब बंदा सुनता ही हो तो फिर जोश ही था। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी जोश से भरे रहो। ये पौलुस कहता है ईमानदारों को मुखातब करते हैं, ठंडे ना बैठ। सुस्त घुटनों से खुदावंद को नफरत है। खुदा पसंद नहीं करता ऐसे घुटनों को जो सुस्ती करते हैं। टाइम हो गया तो टोरी जाना कोई बात नहीं। और आप देखें हमारी ये आदत है, जब पूरा टाइम होता है फिर उस वक्त हम तैयारी करना शुरू करते हैं। सुस्ती है कि चुस्ती है? कोई भी टाइम है, जब टाइम पूरा होगा फिर हम तैयारी करना शुरू करें। लिखवाया टाइम 9:30 बजे वो हो सकता है हम तैयारी और हम खड़ा करो चाहिए नहीं पाजी। कितनी देर पहले आना चाहिए? पहले 15 मिनट आकर दुरुस्त करें, अपनी सेटिंग करें, अपनी जगह सही करें, माइक ठीक करें, पहले आ। कितने भरे हैं रूहानी जोश से? इसलिए जब टाइम पूरा होता है किसी भी का, फिर हम उस वक्त तैयारी करते हैं। कितने रूहानी जोश से हम भरे हुए हैं। खुदावन की खिदमत करते रहो, एक दिन की बात नहीं है, करते ही रहेंगे। स्टॉप नहीं होंगे। तूफान आ जाए, आंधियां आ जाए और प्रॉब्लम आ जाए, गुर्बत आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, ईमानदार शख्स ने रूहानी तौर पर खुदावन की खिदमत करते रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
कल हमारे चेयरमैन साहब कह रहे थे कोरोना आने के बावजूद कोई आपकी इनकम जीरो नहीं हो गई। कितना ये की भेजी तो इनकम किसी की जीरो हो सकती है? नहीं। जीरो हो जाती है इनकम के नहीं? जीरो हो तो खाना कितना? आप कोरोना के दौरान खाते रहेंगे नहीं? खाना मिलता है। जी जी। इनकम जीरो कभी नहीं हो सकती। कुछ कामों ने कहा अच्छा जी इसलिए भेजी कोरोना था इसलिए उन्होंने कहा इनकम जीरो नहीं हो सकती। आपको 100 रुपया हदिया मिला उसमें से 10 पैसे आप खुदावन की खिदमत करते रहे इस हालत में भी। ये है रूहानी जोश, ये है खुदा के लोग, ये खुदा की खिदमत करने वाले लोग अगर नहीं करते तो फिर उनकी अपनी मर्जी है। अमीर में खुश, मुसीबत में साबर दुआ करने में मशगूल रहो। मुकद्दसों की एहतियाज रफा करो, मुकद्दस लोगों की जरूरतें पूरी करो, जिसके पास है वो दूसरे को दे। असी नहीं बड़े साढ़े तो का बड़ी मुश्किल दूसरे की देना। और मुसाफिर परवी में लगे रहो। खाते का दो परौने आए हम पता कि दो जाना है। खुशी नहीं, खिदमत करनी हमने, खिदमत में लगे रहो। इसी हर एक शख्स के पास खुदा ने उसको खिदमत दे रखी है। खिदमत पहचाने फिर वो आगे बढ़ सकता है। इसी खात में हम देखेंगे उसका चौथा बाब उसकी 11वीं। कोई भी जिसको मिल से पढ़ सकता है। चौथा बाब उसकी 11वीं आयत से। मैंने कहा इसको सच से जाता लेंगे सिर्फ 11वीं आयत में लिखा है और उसी ने बास को रसूल, बास को नबी और बास को मुबश्शिर, बास को गवाह और बास को गवाह और उस्ताद बनाकर भेजा दे दिया। ये 5 खिदमत दूसरी खिदमत से हट के ये होते भी हैं, ये खिदमत भी हैं, ये बुलाहट भी है। अगर किसी शख्स की खिदमत बुलाहट जो है पासबान की है, पादरी के वो मुबश्शिर नहीं बन सकता, उसको पादरी भी रहना चाहिए। किसी की बुलाहट अगर मुबश्शिर है तो पादरी ना बनने की कोशिश करे, वो उसी जगह पे रहे, फलदार शख्स होगा। और मुबश्शिर जो होता है उसकी अपनी शान होती है, उसको खुदा बड़े मुआज़ात के साथ, बड़े निशानात के साथ उसको इस्तेमाल करता है। कब जब वो अपनी खिदमत को पहचानेगा। आम शख्स नहीं है, ये बहुत बड़ी बुलाहट है, बहुत बड़ी खिदमत है, बड़ा मकाम है। इसलिए मुबश्शिर बिली ग्राम जो दुनिया में इसका एक नाम था, आज तक उसने अपने आप को पादरी निकाल लिखा उसका अपने नाम। एक शख्स नहार दबोंगी, वो भी मेरे ख्याल से दुनिया से चले गए हैं। उस शख्स ने अपने आप को आज तक पादरी ने कहा और बड़े बड़े क्रूसेड उसने किए हैं, बड़े बड़े मुआज़ात उस शख्स ने किए हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन उसने की है, बड़े बड़े मुश्किल हालात में से वो शख्स गुजरा है। लेकिन उसने कहा मैं खुदावंद के लिए मुबश्शिर हूँ, मेरी प्लाट मुबश्शिर की, इसलिए आज तक उसने अपने आप को इस खिदमत के लिए वक्त कर रखा। जो खिदमत है उसमें आप अगर दुख उठाएंगे उसकी ब्लेसिंग आपके लिए जानी हो। कैसे? पादरी जयपाल हमारे साथ का चेयरमैन है, बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अपनी गवाही दी कैसे खिदमत उन्होंने शुरू की, कैसे दुख उठा के वो आगे बढ़े। एक छोटा सा कमरा जैसे हाथ होगा, हाथ से भी काम। कहते वो एक कमरा था मेरे पास, उधर ही मेरी चारपाई थी, उधर ही मैं सोता था, उधर ही इबादत करते थे, उधर ही मैं अपने लिए खाना बनाता था, उधर ही मैं रहता था। जब इबादत करनी होती फिर चारपाई को उठाते, इबादत करते और फिर वापस उस जगह पे रख देते। आज बिग रोड कराची में पेंटिकॉस्टल दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया उस शख्स की। कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? एक कमरे से। एक कमरे से। ये दुख नहीं है,
दुख की बात मैं बताने लगा हूँ, कुर्बानी की बात बताने लगा हूँ। जब उन्होंने चर्च शुरू किया तो वहाँ उसके इर्द गिर्द सारे जो मुस्लिम थे और उन्होंने कहा तुम यहाँ चर्च नहीं बना सकते, हम तुझे यहाँ चर्च नहीं बनाने देंगे, इबादत नहीं करने देंगे। कमेटी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पास्टर छड्डो तुसी कोई बंदा ना मान सके। कमेटी ने कहा हम इधर नहीं करेंगे, इसको छोड़ दे। और कहते मैंने रात को दुआ की, मेरे दिल में खुदा ने रखा नहीं हम इधर चर्च बनाएंगे। बड़े लोग का समझाया तो बेवकूफ़ी ना कर, ये तुझे मार देंगे। उन्होंने कहा मैं इधर ही चर्च बनाऊंगा और मरने के लिए मैं बड़े केस उन्होंने किए, लेकिन वो शख्स डटा। आज सबसे बड़ा चर्च कुर्बानी कितनी बड़ी दी है, असी की नहीं कुर्बानियाँ देते। अभी हमारे जो साहब इस साल साहब चेयरमैन थे असम्बली गार्ड के, वो खुदा के पास चले गए हैं। पेशावर में पेंटिकॉस्टल चर्च में सबसे बड़ा चर्च उनका है। और वो पठानों के इलाके में रहते थे, उसके चुगले जो सारे पठान थे, क्रिश्चियन नहीं थे। जब वो इबादत करते उनको बड़ा मसला होता, बड़े बड़े जगीरदार पठान थे और पठानों ने कहा हम तू इधर इबादत नहीं कर सकता, हम तुझे इबादत नहीं करने देंगे। और उन्होंने कहा हम तुझे गोली मार देंगे तो अगर इधर इबादत करेगा तो पठान तौर पर बड़े ख्याल मार। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे यहाँ रखा है, मैं इधर चर्च बनाऊंगा, मैं इधर इबादत करूंगा, जो कुछ आपसे होता है वो कर। और उन्होंने अपने आप को मौत के सामने रखते हुए वहां इबादत की और आज सबसे बड़ा चर्च वहां मौजूद है। हालेलुया। ये छोटी बात है, मतलब ये ऐसी कुर्बानियां हैं जो समझ लें। कोई शख्स आपके सामने बंदूक लेके खड़ा है, अगर तुमने थोड़ी सी भी नाफरमानी की वो तुम्हें खत्म कर सकता है। ऐसी जगह पे ऐसी हालत में कोई शख्स अपने जिंदा खुदा के लिए खड़ा हो जाए, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। कितनी कुर्बानी हम देते हैं, क्या कुछ कैसी ब्लेसिंग जाते हैं खुदा से। इस कदर कोई शख्स अपनी खिदमत को, बुलाहट को, अपने खुदा को समझेगा, जानेगा, उसी कदर वो शख्स खुदा की पहचान में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वो जिसका पहला खत उसका तीसरा बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, इस तरह खातों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। ये भी पहले आजमाए जाएं। पहले क्या किए जाएं? आजमाए जाएं। ये कलीसिया में मामूनीन खादम हैं जो पासवानों की खिदमत में मददगार होते हैं। ये सबसे पहले आजमाए जाएं, इनको देखा जाए कितने वफादार हैं, कितने ये ध्यानदार हैं। इसके बाद अगर वो बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें, वरना ना करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार, सब बातों में ईमानदार, खादम, एक बीवी के शोर हो, अपने अपने बच्चों घरों का बंदोबस्त करते हो, क्योंकि ये जो खिदमत का काम बखूबी सारे इंजाम देते हैं वो इसलिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु में है बड़ी दिलेरी हासिल करेंगे। ये है खिदमत करने वाले शख्स का किरदार। फिर हम तीतस के खत में देखते हैं उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में पढ़े, मुकद्दस पौलुस उसको खिदमत करते कहता मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मानदा बातों को क्या करे, दुरुस्त करे, मेरे हुक्मों के मुताबिक शहर बशहर ऐसे जुल्म करे जो बेइल्जाम और एक बीवी के शोर, उनके बच्चे ईमानदार और बादशल्ली और सरकशी के इल्जाम से पाक हो, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना खुदा के भेदों का मुख्तार है। वो ना खुद राई हो, खुद राई का मतलब कहते हैं कि जेड़ी मैं राय देती है ये ठीक है, बाकी सारी है।
खुद राई नहीं होना चाहिए, ना गुस्सा, उस गुस्सादार शख्स ये न कलाम आकर के आड़ा गुस्सा करते सब कलाम सुना, उसकी जिंदगी में गुस्से को जब्त करने की खूबी होना जरूरी है। ना नशा में गुल मचाने वाला, ना मारपीट करने वाला, ना नाजायज नफा का लालची हो, जहां से स्पोर्ट मिले वहां से लेना शुरू कर दे, जहां से पैसा वहां से समेटना शुरू कर दिया, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुतकी, मुनसिफ मिजाज, पाक जब्त करने वाला, ईमान के कलाम पर जो उस तालीम के मुआफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके, मुखालफों को कायल कर भी, मुखालफों को भी कायल बंदा आप भी ठीक होए, किसी शख्स को गाल सुनाएगा, आप भी नहीं ठीक हो दूसरे को गाल सुनाए। अगर शख्स खुद ना ठीक हो दूसरे से कोई कलाम सुनाएगा, वो कहेगा पहले आपने तो ठीक कर लिया। अक्सर लोग बातें करते हैं, बातें कलाम तो बड़ा सुनाते, अपने बच्चे तो ठीक नहीं है, ये कहते हैं, मजॉरिटी में लोग ये कहते हैं। जो भी शख्स खिदमत करे उसको पहले अपने खानदान को बेहतर करने की जरूरत है। बाइबल का बस बयान करती है। हो सकता है हम सारी कहते हैं पादरी पहले अपने बच्चे ना ठीक कर लें, जब बुआ ना थे बुआ थे अपनी पादरी की प्रेजेंट हुआ ना, कलाम यही कहता है पहले अपने आप को ठीक, बच्चे बेइल्जाम हो, बीवी ठीक हो और उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत, क्योंकि क्यों ये इतनी खूबियां उस शख्स में होनी चाहिए, क्यों ये इतनी सफात उस शख्स में होनी चाहिए, क्योंकि वो बादशाहों के बादशाह खुदा रब्बुल फाज और कौमों के रब लश्करों के खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। किसको पेश, किसके लिए पेश अपने आप कर रहा है? इतना बड़ा खुदा जो सब दुनिया का मालिक है, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने वाला। छोटी बात है इसकी, बड़ी शर्म की बात है उसके। इसी कैसा समझते हैं हम, कितना हम इसको इसी लेते हैं, आसान समझते हैं। और जो शख्स खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश करेगा, वो शख्स तरक्की करता चला जाएगा। यीशु मसीह ने 70 को भेजा, उन्होंने क्या किया? आके रिपोर्ट दी, एहसास तेरे नाम से बुजुर्ग हमारे ताबे है। रिपोर्ट अपने इंतजाम के ताबे रह के जो शख्स खिदमत करता है वो शख्स ग्रो करता है। जो शख्स इंतजाम के ताबे नहीं, आप लिख लें, वो शख्स कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। जब मुकद्दस पौलुस और सीलास को मिशनरी खिदमत के लिए भेजा गया, उन्होंने वापस आकर रिपोर्ट दी, हम यहाँ गए, ये काम खुदा ने किए और ये खुदा हमारे सिले से करता रहा। सारी रिपोर्ट उन्होंने आप अपने सीनियर्स को दी, ये खुदा ने काम किया। कल मेरा दोस्त फेसबुक पे देख रहा था, मैं उससे विजिट किया इधर आके मुफ्ती चर्चेस में, और जाके वो अपने चर्च में रिपोर्ट दे रहा है। वो चांदे के लिए की तस्वीर एक लगी किसी चर्च की, सियालकोट की, वो जाकर अपने चर्च में बता रहे कि मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने कलाम किया, इस शख्स से मिला, इस शख्स से मिला। इंतज़ाम के ताबे रहकर जो शख्स खिदमत करता है उसकी खिदमत करेगा। जो इंतज़ाम के ताबे नहीं है वो शख्स खुदा के ताबे नहीं हो सकता। जो शख्स खुदा के ताबे नहीं वो कभी भी खुदा का काम नहीं कर सकता। इसलिए जो भी खिदमत आपको मिली, आपको बाहर खड़े होने की खिदमत मिली, कितने ध्यानदार हैं, कितने वफादार हैं। वाई की खिदमत मिली है, कितने वफादार हैं, कितने ध्यानदार हैं। सफाई चर्ची करनी है, कितने वफादार हैं, कितने ध्यानदार हैं, कितने ताबेदार हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी खिदमत आपको मिली है, आपके पास है, आप उसमें कितने
वफादार हैं खुदा के साथ, कितने ध्यानदार हैं इंतजाम के साथ, कितने आप मजबूत हैं, कितने आप खालिस हैं, ये उस शख्स पर डिपेंड करता है जो खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता है। इसी बड़े बड़े ख्वाबों को जब देखते हैं, आज इसको बात हो रही थी सिस्टर एनी के साथ मेरी, वो कहते एक दफ़ा हम पादरी साहब के घर गए, उन्होंने हमारी दावत की, तो उन्होंने खुद सारी प्लेटें और टेबल लगा कर हमारे सामने खाना पेश किया। उस्ताद थे उनके, तो अगर बड़ा शख्स इतना ताबे है, इतनी खिदमत के लिए तैयार है, तो दूसरे शख्स को किस कदर ताबे होने जरूर। ब्लेसिंग फरमाबरदारी है। अगर ताबे फरमाने फरमाबरदारी हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो आप किसी न किसी हवाले से कह सकते हैं पंजाबी में टिके डुबे रहो, किसी ने कहा समझ नहीं करना क्या, उलझन में रहें। जब आप किसी भी काम में किसी भी शख्स के साथ सुसन खुदा के साथ फरमाबरदारी करेंगे, आप कभी भी उलझन में नहीं रहेंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या हो। ये सारी चीजें खुदा के थ्रू की कुदरत के वसीला से खुदा हमारी जिंदगी में से निकालता है, हमारे लिए रास्ते हमवार करता है। इस जिस कदर कोई शख्स इंतजाम के ताबे होगा, सीनियर्स के ताबे होगा, वो खुदा के ताबे होगा, जो खुदा के ताबे होगा उसकी जिंदगी में खुदा कामयाबी को जारी करेगा। मुकद्दस यशवा को खुदा ने कहा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। अगर तू कलाम के ताबे रहकर जिंदगी गुजारेगा, तो ये सारी पब्लिक जो है तेरे मुताबिक है, सारे लोग तेरे क्या हो जाएंगे, लेकिन तुझे किसके मुताबिक रहना है, कलाम। फिर ये सारे तेरे ताबे। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, उसने कहा मैं अपने आप कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूं। यीशु मसीह अपने आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये उनकी फरमाबरदारी है, जो बाप मुझे कहता है मैं वो कहता हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। बाप से सुनता हूं, वो आप तक पहुंचाता, जो कुछ बाप मुझे कहता है मैं वो करने के लिए तैयार होता। फिर बाप से कहता है बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे रहते हुए यीशु मसीह ने ऐसा नाम, ऐसी शान, ऐसी सरफराजी पाई जो सब नामों से आला है, जो सबसे ज्यादा सरफराज है, जो सबसे ज्यादा आला। हालेलुया। कैसा फरमाबरदारी का था वो। बेशक खुदा, बेशक वो खुदा था, लेकिन उसने अपने आप को खुदा के कब्जा में होने को कुछ ना समझी। पड़ेंगे फिर भी खात में बड़ी खूबसूरत आयत है। इसकी फरमाबरदारी जब करेंगे, कितनी देर खुदा हमें उस फैसले से गुजारता है, ये खुदा पे डिपेंड करता है। दूसरे बाब की 5 आयत में लिखा, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने इधर से खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने, कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। खुदा खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि इसलिए की मौत गवारा की। ये थी फरमाबरदारी की ब्लेसिंग क्या है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसको बहुत सा बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। कैसा नाम बख्शा? सब नामों से आला, ताकि हर एक घुटना उसके आगे
छुपके खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, कोई भी उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसने अपने बाप की फरमाबरदारी की। हालेलुया। इसलिए आए, हम आम लोग नहीं हैं, हम खास हैं और खुदा की ब्लेसिंग हमारे लिए मौजूद है। आए अपने को बंद करेंगे।